programming fundamentals, which is very much important, and then object-oriented programming, obviously, and then data structures and algorithm, very important subject. How important it is to pick your first language या framework, ठीक है? मतलब अगर आप किसी को recommend करें या किसी को guide करें तो आप उनको क्या recommend करेंगे कि जो वो अपनी पहली programming language है वो कौन सी pick करें? कुछ लोग Python को prefer करते हैं, कुछ courses में Java सिखाई जाती है. So what is your take on this कि कौन सी language जो है वो pick कर लेनी चाहिए? करियर में आए जब हम लोगों ने अपनी जॉब स्टार्ट की तो हमें तब पता चली कि यार लाइक गिटहब इज़ वेरी लाइक नेसेसरी, बिकॉज बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं जो कि आपका गिटहब पोर्टफोलियो उनके लिए आपके पास एडवाइस क्या होगी कि कंसिस्टेंट रहें या जिसे कहते हैं कि स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, उससे उनके स्किल बेहतर होंगे, या फ्रीलांस भी जो है वो उसकी भी कोशिश करें, तो वो अपनी जर्नी को स्टेबलाइज कैसे करें? क्योंकि ऑब्वियसली जब आप जॉब में आते हैं तो आपको एक डायरेक्शन तो मिल जाती है, लेकिन यूनिवर्सिटी में जब वो इस जर्नी को लेके चल रहे हैं तो आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे? Assalamu alaikum and hello everyone. This is Syed Abdullah and you guys are watching TechCast by Syed. Today we are gonna talk about on a very hot role in tech और जिसमें जो है करियर बहुत प्रेफर किया जाता है, and that is software development. So for that reason I have today the guest Faik, and he is a senior software engineer. So without wasting any time, I would like to welcome Faik. So Faik, welcome to the show. Thank you so much, Abdullah, for having me in your podcast. Thank you so much, and assalamu alaikum everyone. Alaikum assalam. So Faik, it's a pleasure to have you on call. जिस तरह का शो का फॉर्मेट है, मेरी कोशिश होती है कि जो हमारे गेस्ट हैं वो अपने आप को खुद जो है वो इंट्रोड्यूस करें. तो अगर आप ऑडियंस को अपना एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दे दें इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड, किन स्टैक्स पे आपने काम किया और कैसा अब तक आपका एक्सपीरियंस रहा है. So yeah. Okay, so let's start from my introduction. So basically, I did my bachelor's in computer science from UT Lahore, and then I started my career from an IT company, which is a USA-based Pure Logics, and I majorly worked on on the front-end technologies at that time because it was the start of my career, and I majorly worked on the front-end technologies and like React and WordPress and Shopify, and then further I moved to another switch another company, and I worked there for like cross-platform mobile applications in Angular and Ionic, and I also have the experience of backend technologies like Node.js and serverless technologies like AWS and Microsoft Azure, like serverless computing. So it was a very amazing time in my career, and currently I'm working as a senior software engineer at Systems Limited, and my current roles and responsibilities are for the cross-platform mobile applications and hybrid web applications. Right. So That's very interesting, and thank you for such a wonderful introduction, Faik. So I just straight away want to dive in to the today's topic of this video, और हम बात करने वाले हैं regarding career in software development. So हम थोड़ा start से ही start करते हैं कि आप इस हवाले से गाइड करें कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो अभी यूनिवर्सिटी में है और वो CS या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहा है, तो उसको यूनिवर्सिटी में किन चीज़ों पे जो है वो फोकस करना स्टार्ट कर देना चाहिए इफ ही और शी इज लुकिंग टू मेक हिज और हर करियर इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. ओके यस, सो आई थिंक जो भी स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में वो जो भी लाइक वो CS कर रहा है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है, IT कर रहा है, सो मेजरली सब डिग्रीज एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, तीनों डिग्रीज. तो आई थिंक जो सब्जेक्ट्स इनमें एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो वो हमारे पास सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग obviously, and then data structures and algorithm, very important subject. I think in order to you want to, for example, want to crack any FANG company's interview, so I think data structures and algorithm is very very important subject. And also the student should participate in tech events, and the student should also create some projects, side projects in the semester for their own learning, for their self learning. So I think these things are very like important for any student if he or she wants to make his bright career in the field of software engineering, and Right. also So the networking with the like-minded professionals.
ओके राइट, सो Networking इसमें with आपने like-minded professionals is very necessary. राइट, सो इसमें आपने मेंशन किया कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिस तरह प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, इन पे फोकस करें। तो इसमें ये क्लियर आउट भी करें कि बच्चे सिर्फ जो है वो कोर्स वर्क करें, या वो अपना जिसे कहते हैं कि इंटरनेट से खुद सेल्फ लर्निंग भी करें साथ साथ। सो फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ ऊप में वही चीज़ें ना करूं जो मुझे टीचर ने स्लाइड्स में दे दी हैं, मतलब मैं उसको प्रैक्टिस भी करूं और साइड प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करूं। तो उस हवाले से किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए? एग्जैक्टली हम लोगों को मतलब एक स्टूडेंट को यही चाहिए कि वो अपनी लाइक जब वो अपनी बैचलर्स कर रहा है तो उसके दौरान जो भी उसके सब्जेक्ट्स हैं उसकी वो एक प्रॉपर्ली ना अपने सेमेस्टर में खुद से अपने सेल्फ लर्निंग के लिए अपने प्रोजेक्ट्स बनाए, साइड प्रोजेक्ट्स। और ओके दूसरी बात ये कि उसको गिटहब पे कंट्रीब्यूट करे, अपना एक गुड गिटहब पोर्टफोलियो प्रॉपर्ली बनाए। एंड क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है, क्योंकि हमें भी ये चीज़ें बाद में पता चली थी जब हम लोग लाइक अपने करियर में आए, जब हम लोगों ने अपनी जॉब स्टार्ट की, हमें तब पता चली कि यार लाइक गिटहब इज़ वेरी वेरी लाइक नेसेसरी। बिकॉज बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं जो कि आपका गिटहब पोर्टफोलियो, आई थिंक जब आपके कोर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, लाइक आपकी डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा बेसिस, या मतलब ये जो बेसिकली कह रहे हैं ना कि पिलर्स ऑफ एनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जब आपके राइट। ये स्ट्रॉन्ग होंगे ना, तो आई थिंक सो तब आपके लिए आगे अपने करियर में आपको ना मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि आम जबान में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे आपको, वो नहीं मतलब करना पड़ेगा आपको, मुश्किलात नहीं आएंगी आपको, आप अपनी फर्स्ट जॉब को लैंड करना आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि आपके जो बेसिक ये डेटा स्ट्रक्चर्स और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, डेटा बेसिस, ये जब आपके एल्गोरिदम्स, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, ये जब आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, अच्छे होंगे। राइट, सो इसमें आपने देखें बता तो दिया कि एज अ स्टूडेंट जो है वो किन सब्जेक्ट्स पे जो है वो फोकस करना है, लेकिन ये जर्नी बड़ी टफ होती है। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं भी यूनिवर्सिटी में था, तो हम ऑनेस्टली स्पीकिंग, और ये सबके साथ होता है कि प्रोग्रामिंग से लोग शुरू में घबराते ही हैं। तो आप जो मतलब बच्चे जो स्टार्ट कर रहे हैं या इस जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं, और वो अपने आप को वाकई सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाना चाहते हैं, आई नो इट्स नॉट ईजी। तो उस उनके लिए आपके पास एडवाइस क्या होगी कि कंसिस्टेंट रहें, या जिसे कहते हैं कि स्टडीज पे ज़्यादा फोकस करें, उससे उनके स्किल बेहतर होंगे, या फ्रीलांस भी जो है वो उसकी भी कोशिश करें? तो वो अपनी जर्नी को स्टेबलाइज कैसे करें? क्योंकि ऑब्वियसली जब आप जॉब में आते हैं तो आपको एक डायरेक्शन तो मिल जाती है, लेकिन यूनिवर्सिटी में जब वो एग्जैक्टली, इस जर्नी को लेके चल रहे हैं, तो आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे? डेफिनेटली फ्रीलांस प्रोजेक्ट भी करने चाहिए, और कंसिस्टेंसी डेफिनेटली जो भी स्टूडेंट्स इस फील्ड में आ रहे हैं, तो मैं तो बेसिकली यही इनको रिकमेंड करूंगा कि अगर उनका अपना इंटरेस्ट है, लाइक दे रियली वांट टू स्टडी कंप्यूटर साइंसेज और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो वो आएँ। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने पहले एफएससी मेडिकल कर लेते हैं, देन वो अपना फिर एक सब इसमें डॉक्टर लाइक उसमें उनका एडमिशन नहीं होता है एमबीबीएस में, और उसके बाद फिर वो जो है वो अपना मैथ्स का सब्जेक्ट रिपीट करते हैं एक साल लगा के, फिर वो इस फील्ड में आते हैं। सो आई थिंक सो राइट। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने लाइक मैट्रिक में कंप्यूटर साइंस पढ़ा, फिर उन्होंने या ओ लेवल्स में कंप्यूटर साइंस पढ़ा, उसके बाद उन्होंने एफएससी नहीं की, आईसीएस किया। तो मतलब ऑब्वियसली बहुत सारी जॉब्स में भी इवन कि जब आपका सीवी जाता है और रिक्रूटर या टैलेंट एक्विजिशन टीम की मतलब टीम से कोई बंदा दिखता है, तो डेफिनेटली जब वो ये चीज़ देखता है कि इसका थ्रू आउट द बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस रहा है, तो डेफिनेटली ये चीज़ बड़ा एक अच्छा इंपैक्ट डालती है। सो आई थिंक सो जो बच्चे जो हैं से इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आएँ, और अगर अगर कोई आ भी गया इस फील्ड में और अगर उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, तो आई थिंक सो उसको इनिशियली स्टेज पे स्विच कर लेना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली कोडिंग से कुछ लोग जो है ना वो लाइक घबरा जाते हैं, या फिर उनका उसमें कह लो कि ना वो लोग चीज़ों को उस तरीके से पिक नहीं कर पा रहे होते, जैसे जैसे एक जो बंदा जो इंटरेस्टेड है वो पिक कर रहा है। तो बिल्कुल। आई थिंक सो उसको फिर और इसमें ऑब्वियसली सीएस में कुछ ऐसी फील्ड्स भी हैं जिनमें हमारे पास कोर कोडिंग नहीं है, लाइक लाइक क्वालिटी एश्योरेंस की, तो उसमें स्विच कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा किसी और आई मतलब कंप्यूटर साइंस में ही रहते हुए किसी और फील्ड में वो स्विच कर सकते हैं जिसमें कोर कोडिंग नहीं है, बिल्कुल। बट लाइक हैं डिफरेंट काम करने के लिए, तो उसमें वो लाइक स्विच कर सकते हैं। बिल्कुल, दैट्स करेक्ट, लेकिन इसमें थोड़ा-सा ये भी मैं ऐड करूँगा कि इंटरेस्ट आपका एक सर्टेन टाइम के बाद डेवलप होता है। अगर आप स्टार्ट में ही घबरा जाएँगे, सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको हाँ, प्रोग्रामिंग मुश्किल लग कंसिस्टेंसी, रही है। डेफिनेटली हाँ, कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट, इफ यू आर कंसिस्टेंट सो इट मैटर्स अ लॉट। बिल्कुल। और डेफिनेटली आप उससे चीज़ों को आने वाले टाइम पे कर लेते हो। एग्ज़ैक्टली, और उस स्टेज से हर कोई गुज़रता है। मतलब प्रोग्रामिंग चीज़ ही इस तरह की है कि वो एक थोड़ी डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि हमने कॉलेजेस में या स्कूल में वो चीज़ की नहीं होती, और अचानक से जब उस चीज़ के साथ इंटरेक्शन होता है तो इट इट लुक्स डिफिकल्ट, बट एज़ टाइम पासेस आई थिंक यू स्टार्ट एन्जॉयिंग इट एज़ वेल, अनलेस आपको एक बग रिज़ॉल्व करने के लिए 5 घंटे ना लगाने पड़ रहे हों। सो दैट इज़ द थिंग। सो एग्जैक्टली।
इसी को फाइट कंटिन्यू करते हुए अब मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू पिक योर फर्स्ट लैंग्वेज या फ्रेमवर्क, ठीक है? मतलब अगर आप किसी को रेकमेंड करें या किसी को गाइड करें, तो आप उनको क्या रेकमेंड करेंगे कि जो वो अपनी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो कौन-सी पिक करें? कुछ लोग पाइथन को प्रेफ़र करते हैं, कुछ कोर्सेज़ में हमें जावा सिखाई जाती है। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस कि कौन-सी लैंग्वेज जो है वो पिक कर लेनी चाहिए टू स्टार्ट लर्निंग? आई थिंक सो यूनिवर्सिटीज़ में तो मोस्टली बच्चों को लाइक सी या सी प्लस प्लस से स्टार्ट करवा देते हैं और जावा भी करवाते हैं। सो आई थिंक सो अगर अपनी लाइक जो डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो है ना, ऑब्वियसली मेरे ख्याल से किसी भी लैंग्वेज, स्पेसिफिक लैंग्वेज को सीखने से पहले ना, लाइक जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोर कॉन्सेप्ट्स है ना, अगर किसी भी पर्सन को लाइक जो आईटी से इसका बैकग्राउंड है, उसको अगर प्रोग्रामिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना, तो आई थिंक सो किसी भी लैंग्वेज के सिंटैक्स को ग्रैब करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर उसको लैंग्वेज के कोर कॉन्सेप्ट्स है, मगर अगर उसका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है ना, लाइक लाइक उसने सी से स्टार्ट किया, तो सी से स्टार्ट किया, वो सी प्लस प्लस भी सीख लेगा, जावा भी सीख लेगा। सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है ना, बाकी चीज़ें तो वही रह रही हैं, वही फॉर लूप्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, और लाइक वेरिएबल्स, बाकी सब चीज़ें तो वही हैं। बस ये कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक सिंटैक्स डिफरेंस मतलब आपको देखना पड़ता है। तो फिर और अगर लाइक जैसे डिग्री कंप्लीट किया और अगर वो लाइक ऑब्वियसली अगर वो डेवलपमेंट की फील्ड में आना चाह रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में, डेफिनेटली वो जावास्क्रिप्ट इज वेरी पावरफुल लैंग्वेज इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एंड यू नो लाइक जावास्क्रिप्ट में तो ऑब्वियसली बैकएंड पे भी नोड जेएस के तौर पे यूज हो रही है, इलेक्ट्रॉन जेएस, काफी सारे फ्रेमवर्क्स आ गए हैं जिसमें मतलब, लेकिन कोर लैंग्वेज तो जावास्क्रिप्ट ही है ना। हुँ, So I think so JavaScript and for like Python is also क्योंकि Python जो है वो मशीन लर्निंग एआई में भी यूज हो रही है। अगर कोई अपना करियर उसमें बनाना चाहता है तो डेफिनेटली Python, और Python में बहुत सारे लाइक ये जो क्यूए ऑटोमेशन के इंजीनियर्स हैं वो भी डेफिनेटली Python को डिफरेंट स्क्रिप्ट्स वगैरह यूज करने लिख रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी में अगर आप करियर स्टार्ट करें तो Python मतलब यूज किया। तो आई थिंक सो कि किसी मतलब लैंग्वेजेस तो हम लोग सीख ही लेंगे, मतलब आप और भी सीख सकते हो, कोई और लैंग्वेज जो है उसको भी आप मतलब सीख सकते हो। सो आई थिंक सो कि किसी भी लाइक it is very important to learn programming core concepts rather than any specific language. जब आपको राइट। कोर कॉन्सेप्ट्स आ गए तो डेफिनेटली आप स्पेसिफिक लैंग्वेज को आप सीख ही लोगे। सिंटैक्स को ग्रैब करने में आप 2 दिन लगाओ उसको, मतलब आपको डेफिनेटली आप हैंड टू ज़ोन हो जाओगे और वो आपको कर लोगे। राइट, सो मेन चीज़ इज़ द फंडामेंटल्स, लेकिन आपने साथ ही यस। रिकमेंड जो किए हैं 2 लैंग्वेजेज़, दोज़ आर पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट, एंड आई एग्री विद यू कि जावास्क्रिप्ट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, और उसकी जो जॉब मार्केट है दैट इज़ आल्सो क्वाइट रिच, क्योंकि फ्रंट एंड बैक एंड काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं उसमें। एंड पाइथन ऑफ कोर्स, द वे वी आर मूविंग टुवर्ड्स एन एआई एरा विद डाटा साइंस गेटिंग हॉट एंड दिस एंड दैट, तो पाइथन एक अच्छी चॉइस भी हो सकती है। ओके, चलें, एक स्टूडेंट है, उसने डेफिनेटली फंडामेंटल्स भी डेफिनेटली। अपने अच्छे कर लिए हैं, और उसने थोड़ी बहुत लैंग्वेज भी सीख ली है। तो अब आपको भी मार्केट में काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो क्या हॉट फ्रेमवर्क्स, क्या अच्छे फ्रेमवर्क्स या टेक्नोलॉजीज़ मार्केट में इस टाइम चल रही हैं, जिस पे जो है एक स्टूडेंट को फंडामेंटल सीखने के बाद उस फ्रेमवर्क पे आ जाना चाहिए? क्या रिएक्ट की काफ़ी ज़्यादा जॉब्स और डिमांड है, या कोई और फ्रेमवर्क काफ़ी हॉट है? और मैं ये पाकिस्तानी टेक मार्केट के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। ओके। यस, द क्वेश्चन इज वेरी गुड एंड आई थिंक सो जब आप बात करते हैं ना कि आपने कोई भी फ्रेमवर्क या फिर आपने कोई भी टेक स्टैक को लाइक यू नो पिक करना है, तो डेफिनेटली चॉइस ऑब्वियसली अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट की फील्ड में आ रहे हो, सो इसमें डेफिनेटली डेवलपमेंट में आपके फ्रंट एंड में हमारे पास मेजरली जो आजकल मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है वो मेजरली रिएक्ट सीख रहे होते हैं। हुँ, आई नो इट्स वेरी पॉपुलर आई थिंक सो, बट मेरे ख्याल से कि उन्हें अपनी अगर उनकी जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो रिएक्ट के साथ साथ एंगुलर भी सीख सकते हैं, म्यू जेएस भी सीख सकते हैं, और भी एम्बेड जेएस है, उसके अलावा स्वेल्ट है, और भी बहुत सारी मतलब फ्रेमवर्क्स हैं। बट आई नो द रिएक्ट इज़ वेरी पॉपुलर, लेकिन इसके साथ फिर बैकएंड पे वो डेफिनेटली मीन मेड स्टैक जो है वो मतलब बहुत फेमस है, और इसकी लाइक हॉट यू नो टेक स्टैक है और मार्केट में काफ़ी इन है और इसकी जॉब से बहुत ज़्यादा है। ओके, सो और इसी तरह जब हम लोग जावास्क्रिप्ट अगर हम लोगों ने सीखी है ना, तो डेफिनेटली जब आपने जावास्क्रिप्ट सीख ली तो आप डेफिनेटली क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशंस लाइक आप उसमें रिएक्ट नेटिव सीख सकते हो, आप एंगुलर के साथ आयोनिक सीख सकते हो। आयोनिक को आप एंगुलर के साथ मेजरली वैसे एंगुलर के साथ यूज़ होती है, बट इसको आप रिएक्ट और Vue.js के साथ भी यूज़ कर सकते हो। तो आपकी बेसिकली वन कोड बेस, एंड वही आपकी कोड बेस जो है वो यूज़ होती है आपकी लाइक मोबाइल एप्लीकेशन में भी, आपके वेब एप्लीकेशन में भी, और आप इवन आपके इलेक्ट्रॉन जेएस
इलेक्ट्रॉन जेएस है, बिल्कुल रैपर है, जिससे आपकी अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है वो मतलब आप अपनी बना सकते हो। तो मतलब वन कोड बेस बट इट्स यूज ऑन मल्टीपल लाइक प्लेसेस। सो आई थिंक सो जावास्क्रिप्ट जो है ना वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मतलब एक बहुत बड़ी मार्केट को कवर करती है। सो आई थिंक सो मीन मेन स्टैक इज लाइक वेरी इसको मतलब चूज कर लेना चाहिए। राइट, सो द पाथ कैन बी कि आप अगर आप वेब डेवलपमेंट में आ रहे हैं तो आप सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में जो है वो थोड़े से तगड़े हो जाएं, राइट, और उसके बाद आप किसी भी एग्जैक्टली, फ्रेमवर्क पे जो है वो उस पे काम कर सकते हैं। और आई थिंक डेफिनेटली। मीन मन हैव अ हाँ, लॉट ऑफ जॉब। जावास्क्रिप्ट के साथ टाइपस्क्रिप्ट डेफिनेटली एंगुलर टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड है, ठीक है। और बहुत सारी जो यू नो लाइक जैसे नोड जेएस भी, इवन के नोड जेएस अगर हम बैकएंड पे यूज करें तो उसमें हम लोग मेजरली जो मार्केट में काम हो रहा है वो टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड हो रहा है, आप टाइपस्क्रिप्ट नोड जेएस यूज कर रहे हैं। और इसी राइट। तरह इसके साथ साथ डिफरेंट जो टूल्स हैं लाइक डेटाबेसेस के, लाइक मोंगोडीबी और NoSQL, सिक्वलाइज, हम लोग मतलब इसके साथ साथ इनके भी मतलब एक स्टूडेंट की अच्छी ग्रिप हो, डेफिनेटली वो एक फुल स्टैक डेवलपर कंसीडर होगा मार्केट में और डेफिनेटली विल एक्सेल इन द फील्ड। राइट, राइट, राइट। अच्छा, अब इसको फाइक मैं थोड़ा सा जो है वो फ्लिप करूंगा। आई नो पहले यूनिवर्सिटीज होती थी तो इंटरनेट नहीं होता था, लोगों को यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था, लाइब्रेरी से बुक्स लेनी पड़ती थी और चीज़ों को सीखना पड़ता था। बट नाउ इंटरनेट इज इन द गेम, यूट्यूब है, काफ़ी रिसोर्सेज हैं। तो अब एग्जैक्टली। एक डिबेट होती है कि डिग्री वर्सेस स्किल। तो इसमें जो मैं आपका टेक लेना चाहूँगा वो ये है कि क्या बंदा डिग्री के बगैर भी सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकता है, या डिग्री आपको बेहतर तरीके से हेल्प आउट करती है वो एनवायरनमेंट वगैरह देने के लिए। सो आपकी क्या इस पे टेक है कि अगर एक बंदा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाह रहा है तो उसको, अगर वो अफोर्ड भी कर सकता है, उसके पास पैसे भी हैं, टाइम भी है, तो उसे डिग्री कर लेनी चाहिए, या फिर कोर्सेज वगैरह पे जो है वो फोकस करके जो है वो चीज़ एग्जीक्यूट कर लेनी चाहिए? या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं लाइक यार हम लोगों ने वहाँ से सीख लिया, वहाँ से सीख लिया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से सीख लिया। तो अच्छी चीज़ है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक बहुत सारे कोर्सेज भी इवन की बड़े एक्सटेंसिव होते हैं और बड़े अच्छे कोर्सेज हैं। मैंने खुद भी यूडेमी में बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। हाँ, डिग्री करना बहुत ज़रूरी है अगर आपने पाकिस्तान से बाहर मूव करना है। हाँ, अगर आप पाकिस्तान की बात करें ना, अगर आपने पाकिस्तान में ही रहना है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ये मेरी अपनी हर किसी की डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है, लेकिन ये मेरी अपनी ओपिनियन है। अगर एक स्टूडेंट जो है वो पाकिस्तान में रह रहा है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता अपनी जो एजुकेशन है, सो आई थिंक सो उसे उसे जो अपनी वो सेल्फ लर्निंग के थ्रू लाइक प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इवन कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लाइक बैचलर्स की डिग्रीज नहीं की हुई हैं, और राइट। वो क्या करते हैं लाइक वो लोग डिफरेंट यूडेमी से कोर्सेज करते हैं और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से वो मीन मेन स्टैक का कोर्स कर लेते हैं, लैंग्वेज असल में उनका इंटरेस्ट होता है, ठीक है। सो प्रोग्रामिंग इज लाइक अ गेम ऑफ आवर ब्रेन, सो उनका अपना इंटरेस्ट होता है। लेकिन डिग्री जो है ना पाकिस्तान में, तो आप ठीक है फ्रीलांस बहुत ज़्यादा मतलब फ्रीलांस काम आप बहुत ज़्यादा कर लोगे बिकॉज ऑफ योर स्ट्रॉन्ग स्किल्स एंड बिकॉज ऑफ योर सर्टिफिकेशंस, यूडेमी सर्टिफिकेशंस और एनी सर्टिफिकेशंस फ्रॉम एनी ऑथेंटिक सोर्स। बट जब बात आती है ना कि आपने अगर पाकिस्तान से बाहर मूव करना है, तो आई थिंक डिग्री इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि आपकी बहुत सारी इवन कंट्रीज हैं, जब आप आपका लाइक वीज़ा एप्लीकेशन होती है वो आप देखते हैं कि अगर आप इस वीज़ा पे मूव कर रहे हो वर्क वीज़ा पे, तो डेफिनेटली आप किस फील्ड में किस जॉब में जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको डिग्रीज अटेस्टेड चाहिए होती हैं। और राइट। इवन जब आप इंटरव्यू, बल्कि जॉब से बाहर बात है, जब आप इवन के इंटरव्यूज देते हो इंटरनेशनल मार्केट में, आप ऑनलाइन इंटरव्यूज दे रहे हो, तो डेफिनेटली आपसे वो डिग्रीज वगैरह, रिक्रूटर्स जो हैं वो आपसे डिग्रीज का पूछते हैं दैट, और डिग्रीज ऑब्वियसली, डिग्रीज आपको दूसरी यूनिवर्सिटीज अगर आप अफोर्ड कर सकते हो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। बहुत अच्छा आप ना अपनी एजुकेशन के साथ साथ और बहुत कुछ यूनिवर्सिटी से सीखते हो, लाइक आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप मतलब डेली अपने अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से डेफिनेटली अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको अपने टीचर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप अपने और फिर डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी जो टेक कंपनीज हैं वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाती हैं, डिफरेंट टेक इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, तो आप वो अटेंड करते हो, तो आपको आप ज़रा वो इन टच रहते हो कि एक्टिवली आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें मतलब इस टाइम किस चीज़ का मेजरली स्कोप है। अब जैसे मुझे याद है कि जब क्योंकि हमारे इवन पाकिस्तान में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो जैसे मेजर सिटीज़ हैं लाइक लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद, वहाँ पे तो चलो कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज, और वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा देती हैं यूनिवर्सिटीज़ में। बट बहुत सारी लाइक जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं लाइक साउथ पंजाब और नॉर्थ सिंध, सो उनमें क्या होता है कि उनमें यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे इवेंट्स नहीं होते, तो फिर बच्चे जो हैं उनको वो इन टच नहीं रहते इस तरह के ना चीज़ों से, मतलब डेली हॉट टॉपिक से वो इतना इन टच नहीं रहते। हाँ, एक अलग चीज़ है कि कोई खुद से कोई
कोई बंदा खुद से इंटरनेट में अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ रहा है, एक अच्छा कह लें कि वो नॉलेज गेन कर रहा है, वो खुद खुद चीज़ों को सर्च कर रहा है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, कंपनीज जो हैं वो खुद आके लाइक इवेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में एक्सपोज जॉब फेयर्स होते हैं, एक्सपोज होते हैं, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि आज यूनिवर्सिटी में इवेंट था, हमने इस इवेंट में अच्छा ये लोग आए हुए थे, वो आप डेफिनेटली आप कोलैबोरेट करते हो, आप बहुत सारे एचआर्स और जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं लाइक डिफरेंट कंपनीज के, आप उनसे मिलते हो, तो डेफिनेटली यू विल लर्न समथिंग। सो यूनिवर्सिटी इस पर्सपेक्टिव से लाइक बड़ी लाइक कहने की ज़रूरी है। बिल्कुल। सो सो इन शॉर्ट ये यूनिवर्सिटी ये हेल्प्स यू। डिपेंड करता है कि यस यूनिवर्सिटी डेफिनेटली हेल्प्स यू। बिल्कुल, इट हेल्प्स यू ये टू डिपेंड करता है ग्रूम योरसेल्फ और एग्जैक्टली आपका नेटवर्क ग्रो करता है, आप एज़ अ प्रोफेशनल जो है वो ग्रो करते हो। तो मेरे ख्याल से एग्जैक्टली जो एक बंदा है जिसने डिग्री की हुई है और उसके पास मिड लेवल भी स्किल है, तो वो शायद मार्केट में प्रेफ़र किया जाएगा, क्योंकि वो एक एक तरीक़ेकार से जो है वो एक प्रोसेस से गुज़र के आया है। सो इफ यू एंड कैन इवन अफोर्ड एंड इवन डिग्री। एंड इवन इन पाकिस्तान, yes, and even in Pakistan, the major big tech companies basically see your degree when they hire you. So they basically say that where is your degree? It's just basically show us your degree and the copy of your degree. So I यस। think so. आपको स्टूडेंट्स को इवन के मैंने खुद अपनी जो बैचलर्स की डिग्री है उसकी लाइक एक प्रॉपर फोटो कॉपी अपने कंपनी को प्रोवाइड की थी ऑन माय फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग। सो इस तरह से बट आप फ्रीलांस काम कर सकते हो, लेकिन अगर आप कहते हो ना कि अगर आपने एक बहुत अच्छी जगह पे काम करना है तो आपको डिग्री जो है ना फिर आप डेफिनेटली आपको दिखाने के लिए भी चाहिए होती है, और डिग्री फिर आपको आपके जो आपका जो करियर होता है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपकी लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक जैसा कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, मतलब अगर आपने एक बड़ी जगह पे जाना है लाइक अगर आपने एक बड़ी कंपनीज में जाना है, बिग टेक फिनटेक कंपनीज में काम करना है, तो डेफिनेटली फिर वो आपको इस तरह की चीज़ें एल्गोरिदम्स और लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये आप चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आप अपनी ना यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस से भी आप सीख लेते हो। राइट, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें हमने काफ़ी बात कर ली है लर्निंग वगैरह की, तो मैं अब इसको जो है थोड़ा आपकी तरफ शिफ्ट करना चाहूँगा कि बैक देन आपकी क्या रेसिपी थी कुछ भी लर्न करने के लिए, और इवन अभी भी क्या रेसिपी है? मतलब जब आप कोई चीज़ सीख रहे होते हैं, तो आप साइड प्रोजेक्ट्स करते हैं, ट्यूटोरियल्स देखते हैं, तो आपका जो है वो प्रोसेस या रेसिपी क्या है किसी भी चीज़ को या किसी भी फ्रेमवर्क को लर्न करने के लिए? So definitely, I'm what I basically do is I basically buy a Udemy course ओके, and I start that course and to understand the concepts, core concepts, and then I also in parallel I'll build side projects of related to that tech which I'm learning. ओके। So basically मेरी basically यही approach होती है, और क्योंकि अब मतलब आप ऑब्वियसली 4.5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो गया, तो डेफिनेटली जब भी कुछ चीज़ लर्न करने लगते हैं तो अब थोड़ी सी ना वो पेस जो है वो अच्छी बन गई है, तो अब हुँ, चीज़ें जल्दी पिक लाइक जब करियर स्टार्ट किया था तब थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, बट अब ये है कि अब चीज़ें लाइक जल्दी पिक कर लेता हूँ। और मेरे ख्याल से कि ऐसा ही होना चाहिए कि आप पहले किसी ट्यूटोरियल्स के थ्रू आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो, साइड प्रोजेक्ट्स बनाओ, और फिर अपना एडवांस लर्निंग के लिए आप डिफरेंट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, लाइक जो डिफरेंट गिटहब पे प्रोजेक्ट्स लोगों ने कंट्रीब्यूट किए होते हैं आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड ऑल्सो आई थिंक लिंक्डइन पे जब आप कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करते हो ना और अपने डिफरेंट अपने नेटवर्क को ग्रो करते हो, सो वहाँ से भी आप बहुत सारे अपने लाइक माइंडेड पीपल्स को लाइक इफ़ यू मीट सम लाइक माइंडेड पीपल्स लाइक so definitely you got a lot of knowledge from them regarding any new or emerging technology, so you get a lot of knowledge from them even. राइट, एंड यू कैन कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स एज़ वेल। आई थिंक वहाँ से भी Yeah, जब आप दूसरे कोड बेसेस देखते हो, तो वहाँ से भी आपकी जो है वो काफ़ी लर्निंग definitely, जो है वो। definitely. Definitely, I earlier told you that exploring any open source projects for advanced learning is also like it's my core like recipe to learn anything. यस, दैट्स ग्रेट। ओके, फ़ाइक, हमने काफ़ी जो है ना अब लर्निंग की, पढ़ाई-लिखाई की बातें की हैं। अब हम थोड़ी-सी मोटिवेशन की भी बात करेंगे, एंड नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द Exactly, सैलरी पार्ट। तो जो कि ऑफ कोर्स एक मोटिवेटिंग फैक्टर है। तो लेट्स exactly, सपोज़ exactly. हाँ, हम कह लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, वो ग्रेजुएट हो गया है, उसने अपना जो है पढ़ाई पे भी ध्यान दिया है, चीज़ें भी सीखी हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख ली, कुछ फ्रेमवर्क पे भी थोड़ा बहुत उसने काम कर लिया है। अब वो मार्केट में आ गया है, तो
उसकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस जो है वो क्या होनी चाहिए? लेट्स से या वो फ्रेश है या उसका कह लें कि इंटर्नशिप्स वगैरह करके या कहीं पे जॉब करके 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो 0 टू 1 ईयर के एक्सपीरियंस वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर की आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में क्या सैलरी होनी चाहिए या उसको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? और आप एक ब्रैकेट या रेंज बता सकते हैं, आपको कोई स्पेसिफिक एक नंबर बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद आप 4 टू 5 इयर्स वाले बंदे की जो है उसकी सैलरी रेंज भी जो है मेंशन कर दें कि 4 टू 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद उस बंदे को जो है अगर आप सेल्फ इवैल्यूएशन करनी हो अपनी, तो सॉरी उसको जो है वो इस ब्रैकेट रेंज में होना चाहिए। Okay, so I think the salary basically depends on your skills and also the company or like who is offering you the job. बट फॉर द फ्रेश ग्रेजुएट्स आई थिंक सो फ्रेश कोई फ्रेश ग्रेजुएट है तो उसको सैलरी से ज़्यादा मेरे ख्याल से लर्निंग पे फोकस करना चाहिए और ये लाइक ना आपका जो मेन जो फोकस होना चाहिए उस टाइम आपका लर्निंग होना चाहिए ना कि सैलरी। ऑब्वियसली जब आपका एक स्किल्स अच्छा स्किल सेट बन जाता है ना तो डेफिनेटली फिर आप वो बंदे बन जाते हो, आप डिमांड करने वाले बन जाते हो। सो मेरे ख्याल से फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए इस टाइम जो पाकिस्तान में है ऑब्वियसली जो भी मार्केट क्योंकि जैसे थोड़ा सा इन्फ्लेशन रेट एक्सेल हुआ है तो अकॉर्डिंग टू दैट क्योंकि मेरे टाइम पे तो उस टाइम थोड़ा कम था लेकिन अब मेरे ख्याल से लाइक 100K to 130K तक इवन फ्रेश ग्रेजुएट्स को मिल रहा है, 90K to 130K लाइक इसके अराउंड अबाउट। ओके, और so if I talk about for the person who is having 1 year of experience, professional experience, so like they are like getting like 170 or 150K. ओके, And for the person who is having 4 to 5 years of experience, I think so, and having a very good skill set, so they can, I think the market is basically obviously getting diversified, and a lot of people are adding in the market. So I think so, 400K to 500K or ओके, between them, like ओके, even 350K to 500K. So it's basically the range of the salary यस, for the यस, person having 4 to 5 years of experience. यस, So कंसीडरिंग द फैक्ट कि आप एक डिसेंट कंपनी में काम कर रहे हैं, मतलब व्हिच exactly, पेज वेल exactly. So और it यू नो also I earlier told you that it depends on the skills and the यस, company, and यस, sometimes कभी कभार ऐसा भी होता है कि कंपनीज में ये भी देखा गया है, मैंने खुद से इस चीज़ को बड़ा ऑब्जर्व किया है, यूनिवर्सिटीज़ भी देखी होती हैं कंपनीज लाइक अगर पाकिस्तान में कोई बंदा नर्स या फास्ट से है तो उसका एक ज़रा वो, या यूटी से है तो उसका एक थोड़ा सा मतलब इस चीज़ को भी मैंने नोटिस किया, इट्स माई ऑब्जर्वेशन मे बी किसी जगह पे ये रॉन्ग भी हो सकती है बट मैंने इन चीज़ों को भी लाइक ना थोड़ा सा ऑब्जर्व किया। ये एंड फिर आपका इट्स वही रियलिटी। वही वाला क्वेश्चन जो आपने पहले पहले आपने मेरे से क्वेश्चन किया था कि डिग्री मैटर्स करती है, डेफिनेटली डिग्री कभी कभार इस सेंस में भी मैटर कर रही होती है कि अगर आपने बहुत एक अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर आपने अपनी डिग्री लिया तो डेफिनेटली आप एक अच्छा और फिर डेफिनेटली यूनिवर्सिटी आपको ग्रूम भी करती है, पॉलिश करती है आपके स्किल्स को। तो अगर आप एक तो डेफिनेटली फिर आप जो कंपनीज होती हैं लाइक फॉर हायरिंग यू, अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से हो तो डेफिनेटली दे विल गिव यू एन एज, इट विल गिव यू एन एज। बिल्कुल, दैट्स राइट। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग द मोटिवेटिंग फैक्टर। आई होप कि अगर आपको आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जर्नी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप इन सैलरीज के बारे में सोचें, सो दे कैन हेल्प यू टू कीप ऑन लर्निंग एंड कीप मूविंग। एग्जैक्टली, ओके, एग्जैक्टली। so now we should talk about the future of software development as well. And of course, I want your opinion. इसका कोई right या wrong answer नहीं है। मैंने ये पूछना है कि आपका इसमें जो है वो क्या opinion है। I want to talk about के software development का future from now on, considering the fact AI is there, ChatGPT is there. ChatGPT is doing a lot of work as well. People from big tech like Mark Zuckerberg said कि जल्द ही मिड लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हम रिप्लेस कर देंगे अपनी कंपनी में, इस तरह की चीज़ें, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब्स खत्म हो जाएंगी। आपका इसमें क्या ओपिनियन है, गिवन कि आपने 4-5 साल इंडस्ट्री में लगाए हैं, काम किया है, डिफरेंट कंपनीज को देखा है, आपको क्या लगता है कि ये इतना रैपिडली ही जो है वो शिफ्ट आएगा, या इंजीनियर्स जो हैं वो रोल थोड़ा-सा जो है इवॉल्व हो जाएगा? मतलब हम एआई को भी यूज़ कर रहे होंगे, अपने स्किल्स को भी यूज़ कर रहे होंगे, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को भी यूज़ कर रहे होंगे। सो हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? Okay, so it's very interesting question again, and obviously AI and like cloud computing and other cutting edge technologies will definitely dominate in the future. No, and so
but I think so they will automate some things, but they can't replace any, software engineers or developers. They will, change the nature of our job. They will change the nature of the job, but can't replace the developers, and they will make some things more easy. So इवन आपने भी लेट्स से इवन आपने भी कभी कभार देखा होगा, अगर हम चैट जीपीटी से कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग कभी कभार कुछ उससे कहते हैं टास्क वगैरह, मतलब हेल्प लेते हैं अपनी कोडिंग में, तो बहुत सारी जगहों पर चैट जीपीटी को समझ नहीं आ रहा होता हमें अगर हम उसको बार बार समझाते भी है ना, लाइक उसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें वो नहीं कर पा रहा होता। तो अभी राइट ये लाइक ये एग्जैक्टली अभी चीज़ें ऐसे है कि, और एक और चीज़ बड़ी मजे की है, चैट जीपीटी को भी कोई ह्यूमन ही ट्रेन कर रहे हैं डेफिनेटली। अगर हम चैट जीपीटी से बात करें तो वो हमारी बातों से ही सीख रहा है। मतलब अगर हम उसको बता रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, तो वो डेफिनेटली उस चीज़ को अपने उसके जो मॉडल्स ट्रेन हो रहे हैं उसमें उन चीज़ों को मतलब सेव कर रहा है कि ये चीज़ ऐसे नहीं है ऐसे है, और वो फिर इन चीज़ों को फर्दर डिसीजन मेकिंग में यूज़ कर रहा है। राइट तो चैट जीपीटी के मॉडल्स को ट्रेन भी ऑब्वियसली एक कोई ह्यूमन पर्सन ही कर रहा है ना। सो जॉब्स की जो नेचर है वो चेंज होगी, और डेफिनेटली होगी। बिल्कुल बट अगर हम ये कहें ना कि एक बिल्कुल ही इट विल रिप्लेस डेवलपर्स, सो आई डोंट थिंक सो इट विल, बिल्कुल बट आई एक दो एग्री जॉब्स विद विल यू। डेफिनेटली। आई एग्री विद यू। कुछ जेनेरिक टास्क जो होंगे वो एआई कर रही होगी, जिस तरह अभी भी वो जेनेरिक टास्क आप उससे आराम से करा सकते हैं, लेकिन जो कोर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो कोर सिनेरियो बेस्ड चीज़ों को एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक्सप्लोर करना है, वो और तो ह्यूमंस ही जो करेंगे। अब आगे प्रॉब्लम्स, एग्जैक्टली और अभी जो आगे प्रॉब्लम्स हमें आनी है, ऑब्वियसली चैट जीपीटी को फ्यूचर का नहीं पता, ठीक है। यस चैट जीपीटी कांट प्रिडिक्ट द फ्यूचर। सो अभी जो और प्रॉब्लम्स आनी है, डेफिनेटली एक ह्यूमन ब्रेन ही उस चीज़ को समझ सकता है, उसके लाइक रिस्क फैक्टर्स को, जो भी प्रॉब्लम है, या कोई भी एक न्यू लेट से आने वाले 10 सालों में एक नया सिस्टम लेट से कोई बनने जा रहा है, और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी उसके रिस्क फैक्टर्स हैं, वो एक ह्यूमन ब्रेन या टीम ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स, इवन इवन नॉट अ ह्यूमन ब्रेन वन ब्रेन, लाइक अ टीम ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स, लाइक या they can grab like cater the problem and uh, dig down into that problem, and they will explore the problem, and then they will solve, they will take help from the chat gpt, but and when they will taking help from the chat gpt, then chat gpt will be learning from their questions, their models will be getting trained. तो इस तरह से मतलब हम इस चीज को समझ सकते हैं, और ये मेरी अपनी लाइक ओपिनियन है। राइट बिल्कुल नहीं, ये बहुत एक मैच्योर आंसर है इस चीज़ एग्जैक्टली का कि जो हम बात करते हैं ना कि एक एब्सोल्यूट वे में कि जो है वो रोल ही खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। रोल थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, उसका जो कह एग्जैक्टली लें कि थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन नेचर चेंज चेंज हो हो जाएगा। जाएगी। एग्जैक्टली नेचर चेंज हो जाएगी। और बट डेफिनेटली इवन कि मैं खुद भी लाइक मैंने खुद भी पाइथन सीखी है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि जब चैट जीपीटी आया था तो मैंने फौरन से पाइथन स्टार्ट कर ली। उस टाइम मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन जब चीज़ों को हम सोचते हैं ना, लाइक एक इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, तो डेफिनेटली हमें चीज़ों की सही से समझ आती है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स लाइक ना काइंड ऑफ मिथ। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट। सो हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो है वो फ्यूचर भी डिस्कस कर लिया है, एंड यू हैव covered the roadmap and salaries and all those parts. Now I wanna ask you कि अगर आप एक एडवाइस करना चाहें, मतलब जो एक चीज़ आपने अभी तक मतलब डिग्री करके और फिर 4-5 साल इंडस्ट्री में लगा के सीखी हो, वो मतलब एक जेनेरिक एडवाइस हो सकती है। वो आप स्टूडेंट्स को भी दे सकते हैं, और जो इवन लोग करियर में आपसे जूनियर हैं, आप उनको भी देना चाहें, तो वो एक एडवाइस जो है वो क्या होगी? Okay, so one advice, I think so, grow your network through LinkedIn and through other ओके। platforms. हुँ, So I think so, अगर आपने like you are just going to start out your career and you want to progress in your career, so I think so LinkedIn को एक प्रॉपर वे में यूज करना आना चाहिए, अपने नेटवर्क्स को बनाना, और अपने एक प्रोफेशनल LinkedIn, you want to build your strong portfolio, like you have to build your strong portfolio through the your LinkedIn profile. So, and also definitely continuous learning, and taking ownership of the task, should be adaptable, and one should be accountable if they want to start their career and progress in their career. These all are the tips. राइट, राइट। थैंक यू सो मच फॉर such a wonderful advice. I'm gonna wrap this up, फाइक। हमने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कवर कर ली हैं, बट लास्ट पे जो एक क्वेश्चन है वो हर गेस्ट से मैं सेम क्वेश्चन ही करता हूँ,
और वो क्वेश्चन ये है कि Okay. अगर इस करंट नॉलेज के साथ जो आज तक आपने सीखा, जो आपने आज तक चीज़ें एक्सपीरियंस की, अगर हम आपको दोबारा यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं, तो आप क्या डिफरेंट करेंगे? और कंसिडरिंग फैक्ट ये स्किल्स, ये नॉलेज, ये सारा कुछ आपके पास है और अब आप सीधा यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, तो व्हाट डिफरेंट वुड यू डू? कोई स्टार्टअप करेंगे या आप मजीद मेहनत करेंगे या फैंग की तैयारी करेंगे? सो क्या जो है वो डिफरेंट करेंगे या अपनी जर्नी को सेम ही रहने देंगे? डेफिनेटली ऑब्वियसली जर्नी डिफरेंट होगी। और वैसे अभी 4 इयर्स यूनिवर्सिटी पढ़ के हैं, दोबारा यूनिवर्सिटी में भेज रहे हो। एनीवेज, अच्छा ऐसा होगा कि डेफिनेटली जो चीज़ें ना, ऑब्वियसली मैंने जब अपने करियर में जब अपने जॉब वगैरह स्टार्ट की, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लगता था कि ये मुझे पहले से कर लेनी चाहिए थी। और मेरे ख्याल से हर आने वाले स्टूडेंट को, जो भी लाइक स्टूडेंट से एक प्रोफेशनल में शिफ्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसको ऐसा लगता है। सो आई थिंक सो बिल्डिंग साइड प्रोजेक्ट्स ऑन एवरी सेमेस्टर इज वेरी वेरी लाइक नेसेसरी, और मैं ऑब्वियसली यही करूंगा। और नेटवर्किंग नेटवर्किंग विद लाइक माइंडेड पीपल्स, विद प्रोफेशनल्स, एंड taking part in the tech events, joining job fairs. Obviously you get a lot of knowledge when you attend any event, and when you meet with the working professionals, and exploring the trending technologies, and practicing coding on regular basis, like on the platforms like HackerRank and LeetCode, क्योंकि ये चीज़ें ना, लाइक जब हमें अपनी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हमें अपनी डिग्री, क्योंकि अब हम लोग जैसे स्टूडेंट्स करते हैं, डिग्रीज वगैरह अपनी कर लेते हैं, और उसके बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें, जब हम लोग अपनी जॉब में आते हैं, हम लोग अपनी फील्ड में आते हैं, करियर में आते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, हमें जब वहाँ पता चलती है ना कि यार ये चीज़ ऐसे हो रही है, और ना थोड़ा सा एक ही चीज़, एक थोड़ा सा ना पाकिस्तान में एक ना एकेडेमिया और इंडस्ट्री के ना दरमियान में गैप है, ठीक है। सो डेफिनेटली। बेसिकली स्टूडेंट्स को ना बेसिकली एक्चुअली ये भी नहीं पता होता कि कुछ स्टूडेंट्स को, हर किसी को नहीं, कुछ स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि हमने किस तरह से अपनी जॉब को, फर्स्ट जॉब को कैसे अपने क्रैक करना है, किस तरह से अपनी फर्स्ट जॉब को विन करना है। राइट। तो डेफिनेटली जब आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर अपने एक्सपोज वगैरह अटेंड कर रहे हो, आप अपनी कोडिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, लीड कोड पे, हैकर रैंक पे, कोडर पैड पे, तो डेफिनेटली आपकी वो इतना कॉन्फिडेंस अच्छा बिल्ड हो चुका होता है कि आप डेफिनेटली अपनी वो सीवी पे जब उन चीज़ों को बताते हो, अपनी सर्टिफिकेशंस लगाते हो। एंड या सर्टिफिकेशन, डूइंग सर्टिफिकेशन इज वेरी नेसेसरी। I will definitely, if I want, if I have a chance to again went into the university, so I will definitely do certifications as well. राइट, राइट, राइट। तो आपका मेजरली होगा कि आप मजीद जो है वो ग्रोथ के लिए काम करेंगे, सर्टिफिकेशंस करेंगे, नेटवर्किंग करेंगे और मजीद जो है वो ग्रो करना चाहेंगे। राइट। सो इट वाज सच अ प्लेजर टू Yes, sir. टॉक टू यू फाइक। आई वांट टू थैंक यू अगेन फॉर टेकिंग आउट द टाइम। और जो ऑडियंस हमारी देख रही है, मैं जो फाइक का लिंक्डइन है, वो डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब के जो है वो ड्रॉप कर दूंगा। यू गाइस कैन कनेक्ट विद हिम, ही हैज माशाल्लाह गुड फॉलोअर्स एज वेल। सो थैंक यू सो मच फाइक। अगर आप कोई एंडिंग नोट या एंडिंग थॉट्स ऐड करना चाहें तो यू कैन। एंडिंग नोट डेफिनेटली ये, आप जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक जूनियर्स हैं मेरे, जो भी लाइक अपने करियर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सो डेफिनेटली मैंने जैसा कि पहले बताया कि अपने 4 to 5 सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं, अपने लाइक उन पे बहुत फोकस करें जो लोग अभी अपनी डिग्री कर रहे हैं। और जो लोग लाइक अपनी जॉब में प्रोफेशनल करियर में आना चाह रहे हैं, डेफिनेटली वो लोग अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करें, और लाइक माइंडेड पीपल्स, लाइक रिक्रूटर्स और टैलेंट एक्विजिशन टीम्स के जो लोग होते हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करें, और ताकि आपको अच्छी से अच्छी आपको लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप देख सकें। और लिंक्डइन को प्रॉपर्ली यूज़ करना आना चाहिए। बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं इवन के जिन्होंने डिग्रीज भी कर ली होती है और उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल्स ही नहीं होती, तो लाइक दे आर ब्लैंक लिंक्डइन। राइट। सो आई थिंक सो वहाँ पे उन्हें प्रॉपर्ली काम करना चाहिए, और अपने स्किल्स पे, डेफिनेटली स्किल्स होंगे तो ही जॉब डेफिनेटली मिलेंगी। बट लिंक्डइन इज अ वे बेसिकली टू एक्सपोज योर skills in the global market, and definitely first of all you have skills, and then you have a strong portfolio over the LinkedIn and over other platforms. So I think this is my last note over there, राइट। and thank you so much.